आज की शाम we have a very interesting session lined up with some very interesting talents और इस सेशन का नाम है The Young and the Restless। मेरे साथ हैं on the screen one of India's most popular voice artists and like I always call him the industry heartthrob Sanket Matre. I was just asking him before we started this session backstage. I was asking him, Sanket, are you the young or the restless? And his reply was, I am the reckless. That is actually not true. Sanket ki personality na restless hai, na reckless hai. But yes, Sanket is literally the torchbearer of the young voice artist community. And in the last few years, Sanket has, with his talent, hard work, and with his entire demeanor of being a very helpful, generous professional, he has carved a very strong place in the heart of all of us in the voice industry. Thank you, Sanket, for joining us at India Voice Fest 2024. Thank you so much for having me, Darpan. It's an absolute pleasure. Thank you. Absolutely. And Sanket has always been a very strong pillar of support for India Voice Fest right from the first day, right from 2018, from when we started. Sanket has always been his love has always been very unconditional, and that is something that I can never forget. इस साल भी जब हम ये session plan कर रहे थे, I wanted to have a session with some nice upcoming bright rising stars of the dubbing industry, like we are calling them. क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिया वॉइस फेस्ट एक ऐसा मंच है जहां पर लेजेंड्स और सॉल्वर्ट से लेकर एब्सोल्यूट फ्रेशर्स एवरीवन गेट्स अ वॉइस। और पिछले 6 सालों में जैसा मैंने बताया, हमने 250 से ज्यादा आर्टिस्ट हमारे फीचर हुए हैं। बट इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो लोग हमारे सेशंस में आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पहले कभी इंडिया वॉइस फेस्ट पर नहीं आए हैं, इस मंच पर नहीं आए हैं। And I'm very happy that it will be a great opportunity for us to know them better and for people to know them better and even for them to showcase their talent and the work that they're doing. So I'm going to not take any more time because Sanket is moderating the session. I'm going to ask Anand, my colleague, to invite and get on screen Apala Bisht, Ish Thakkar and Rinki Singhvi. So hello, Rinki, Ish and Apala. Thank you for joining us. Thank you for being a part of India Voice Fest 2024. आज का session, The Young and the Restless, इसको moderate कर रहे हैं हमारे प्रिय मित्र संकेत. And I'm sure he will get the best out of this young lot. And I want Sanket also to let people know why is this young generation restless when it comes to wanting success in the field of voice acting. And also I would like you to know from them about their journey, their success, how do they face their challenges. So it's going to be a very interesting session, everyone. I'm going to leave this stream now and handing over this to you, Sanket. Thank you. And I'll see you on the other side. Thank you. Thank you. So स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस फेस्ट 2024 के इस अमेजिंग एक्साइटिंग सेशन में जिसका नाम है यंग एंड द रेस्टलेस। थैंक यू इश, अपाला, रिंकी फॉर जॉइनिंग मी। आई एम वेरी क्यूरियस पर्सनली टू नो कि आप लोगों का सफर कैसा रहा इस फील्ड में, बिकॉज यू नो रफली 15+ years ago जब मैंने शुरुआत की थी तब चीज़ें अलग थी, अब चीज़ें अलग हैं। क्या वो वाकई अलग हैं या इट्स मोर ऑफ द सेम? अब भी वही जद्दोजहद है नए आर्टिस्ट को फील्ड में आने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, या कुछ चीज़ें बदली हैं? ये जानने की और आप लोगों का प्रोसेस क्या है ये समझने की हम आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट मोमेंट जो वो पल होता है कि जहाँ आपका दिल आपसे कहता है कि यार ये करना है मुझे, ये वॉइसिंग वाली जो चीज है ये जम गई है, यही मुझे आगे परस्यू करना है, या आई वांट टू फोकस मोर ऑन दिस। व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू? किसी को देखकर ऐसा लगा, किसी ने आपसे कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, या कोई एक प्रोजेक्ट आपने शुरुआत में कुछ ट्राई किया था जिससे वो स्पार्क हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए बना है या मुझे इस फील्ड में अपना नाम बनाना है? समथिंग दैट हैपेंड इनिशियली व्हिच ड्रू यू टुवर्ड्स दिस। क्या था वो पल? we can start with Apala if you want, and we can move on like that. Hi, first of all, I'm extremely thrilled to be a part of this session. Thank you for having me, Sanket. Thank you. मुझे याद है, I have always been fascinated towards voicing.
सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर में नाना जी रेडियो सुना करते थे, तो उसमें ऑडियो ड्रामाज आते थे, यू नो, सारी स्टोरी में कैरेक्टर्स होते थे, तो वो सुनती थी, मैं घंटों सुना करती थी उस समय। तो वो कैसेट सिस्टम होता था ना पहले, कैसेट प्लेयर होता था, तो पापा जब ऑफिस चले जाते थे तो वो कैसेट लेकर मैं उसमें रिकॉर्ड बटन दबा के अपना खुद के ऑडियो शोज बनाती थी। शाम हाँ, खुद के स्टोरी टेलिंग और सब कुछ चल रहा है, जो भी दिन भर सुना, ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो पापा आते थे तो उन्हें सुनाती थी। पहले तो बहुत शाबाशी मिलती थी कि वाह हमारी बेटी क्या बना, उसके बाद डांट पड़ती थी कि मेरा फेवरेट कैसेट बिगाड़ दिया। सो धीरे धीरे बड़ी होती गई, डिस्कवरी शोज देखती थी, उसमें पता चला कि ये लोग लैंग्वेज डब करते हैं, हिंदी में जो हम सुन रहे हैं वो एक्चुअली ओरिजिनली इंग्लिश में है, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो फिर मैंने हैरी पॉटर देखी थी हिंदी में। दैट वाज द वन प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो गई थी वॉइसिंग की तरफ कि यार मुझे ये करना है, ये कितना अमेजिंग है, कितने अच्छे से इमोट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में वॉइसिंग और एक्टिंग का हमेशा से था। बट देन फिर आफ्टर ग्रेजुएशन में एक्टिंग परस्यू करने मुंबई आई, तब वॉइसिंग का सब साइड में हो गया, क्योंकि पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है। उस समय भी इतना कुछ था नहीं सोशल मीडिया में जहाँ से मैं फॉलो कर सकूं या किसी से पता कर सकूं कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे वॉइसिंग में काम करते हैं। बट देन वन फाइन डे एक किसी को आर्टिस्ट से मिली जिन्होंने बताया कि अरे मैं अभी अभी डब करके आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा है, ये मेरी ऑडियो बुक्स है, ये सब मैं करता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि वाह ये तो मुझे भी करना है, कब से हमेशा से सबकॉन्शियस माइंड में था, लेकिन कभी रास्ता नहीं मिला। तो मैं उनके पीछे पड़ गई कि मुझे बताओ कैसे करना है, किसे अप्रोच करना है। तो उन्होंने बताया कुछ स्टूडियोज, बट मैं इतना फॉलो नहीं कर पाई, इतना पता नहीं था ऑडिशन कैसे देना है। जी। फिर एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे साउंड एंड विजन के बारे में बताया। अच्छा। मिलवाया कि यहाँ ऑडिशंस होते हैं, यहाँ दो। तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया, मैं ऑडिशन देने गई, तो उन्होंने बोला कि सिंक डब किया है ना अपने आप को, पता है ना? मैंने कहा कितना मुश्किल होगा सिंक डब करना। शूट वगैरह करते हैं, खुद को तो डब करते हैं, बुलाते हैं शूट में कि बिल्कुल तो अपने कैरेक्टर का डब करने के लिए। जी एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यही तो होता है सिंक डब, तो चले गए। वहां पे जाके पता चला जब ऑडिशन हुआ कि इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्किल सेट, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो वहां पे मैंने सोचा कि मुझे ये करना है और मुझे ये सीखना है। जी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया कि हाँ आपका डब है, आप आ जाइए, आपका हो गया। तो मैंने कहा वाह इतना इजी था। हाँ सही है ये तो सीखने का वो जो था कि वर्कशॉप वगैरह कुछ ज्वाइन करूंगी, वो चला गया साइड में, सीधे डब के। मैंने कहा आप स्टूडियो में चले जाइए, यहाँ आपका डब है। मैंने कहा ठीक है। अंदर जाके देखती हूँ तो 10 और लोग बैठे हुए। तो मैंने कहा ये कैसी रिकॉर्डिंग है, मेरी रिकॉर्डिंग है ना आज तो कहते नहीं ये क्राउड डब है। क्राउड डब और क्राउड डब। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। मैंने जो कुछ भी सीखा क्राउड डब से सीखा, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। और 2019 से मैंने शुरुआत की और 1-1.5 साल मैंने क्राउड में ही सब कुछ सीखा। और फिर आगे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए। तो that is how I started. I think some of the best learnings you get are from crowd dubs. Crowd dub से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें, स्पेशली अगर क्राउड्स में सीनियर्स हों कुछ, तो उनको ऑब्जर्व करके इतने नजदीक से किसी आर्टिस्ट को ऑब्जर्व करना, और यू नो हर दिन कुछ नया इम्प्रोव करवाते हैं, हर सीन में कुछ नया इम्प्रोव करना पड़ता है। यू नो योर कोई पॉश पार्टी के लिए क्राउड कर रहे हो, वहीं कहीं नेक्स्ट सीन में आप फिश मार्केट के लिए क्राउड कर रहे हो। यू नो इट्स सो मच इम्प्रोव दैट यू एंड अप डूइंग, exactly, put you through the ground. So I'm glad to hear कि वहां से आपने शुरुआत। What about you, रिंकी, आप बताइए। Actually I would say मैंने पहले से कभी डबिंग और वॉइसिंग के बारे में इतना सोचा नहीं था, ना मैंने कभी डब शोज देखे थे। बट जब मैं बॉम्बे आई एंड मैंने रेडियो सिटी में वर्क किया हुआ था, तो मुझे वॉइसिंग वैसे पसंद थी, डबिंग का मुझे आइडिया नहीं था। बट वॉइस ओवर्स आई हैव डन, या बुक्स रिकॉर्ड करना, ये मैंने एक ब्लाइंड स्कूल के लिए बुक्स रिकॉर्ड करना, ये सब मैं करती थी। सो ये मुझे अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू डू डब फॉर माय ओन शोज। जो होता है ना आप एक्टिंग में अपने शोज को डब करते हो, तो अगेन मैंने उनको बोला कि मुझे भी, बिकॉज वॉइसिंग में इंटरेस्ट है एंड नॉट की टाइम पास के लिए, जेन्युइन, बिकॉज मैंने किया था रेडियो सिटी में, वगैरह किया हुआ था एंड ऑल दैट। तो एक जगह मैं अपना ही डब करने गई थी
तो मैंने कहा कि आप लोग कुछ किसी और के शोज भी डब करते हैं तो कॉल मी। मैं अपना शो करने गई थी, पर मैंने कहा आप कुछ और भी करते होगे तो मुझे भी बुला लेना। और वो टीवी शोज के डब थे कि उसमें पैच वर्क आता था, 2 लाइन डॉक्टर की बोल दो वो, बट एंड वो सेम लाइन बोलनी होती थी, हिंदी की हिंदी। तो वो मैंने 5-6 बार किया। आई वाज लाइक अरे दिस आई नो। So one of my co-actors knew someone in a big studio, and they said, "You know a director, you can go and audition. Audition तो obviously देना ही पड़ेगा." So I was like, जैसे अपारा ने बोला, हाँ ठीक है, and वो डिस्कवरी का शो था, and मैंने कहा हाँ I'm ready, पूरा confidence से I'm going there. Suddenly I'm like, English palette बज रहा है, हिंदी में बोलना है, और वो pauses mark करने हैं. I remember I couldn't do it. I asked them, but कि मैं बैठ के किसी और आर्टिस्ट को देख सकती हूँ परफॉर्म करने। They were really sweet. 2 दिन उन्होंने मुझे अलाउ किया। 2 दिन बाद मुझे समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता बिना समझे। You cannot randomly do it. Is when I decided I will not contact any studio. I got to know about this workshop again at Sound and Vision Studios. वहाँ पे I did the workshop, and then I remember it was December 6th when I did that workshop, 6th, 7th. And they had told me, you call us, we'll call you. When constantly, without shame, every second day, I have called at the reception. I have done the workshop, please call me. I have done the workshop, please call me. So I remember for 2 months I've done this. On 6th of Feb was when they called me for the first time. Exactly 2 months later, I was like, chalo, up start again. That was Crowd Dub. And then again, they again stopped. Again, I called them every 2 days. Then they called me in March. Again they stopped. Again I started calling them. April is when it started thoroughly. For 2 years I did that Crowd Dub, and in those 2 years I did not contact any other studio, no one, because I knew I don't know my job. Because if I contact anyone, किसी भी बड़े स्टूडियो में चले जाओ आप, सुभाष मयूरी कहीं भी आप ऑडिशन दोगे, नहीं आता आपको काम, will not call you again. कोई भी सिखाने नहीं बैठता है. So I was like, that's a very important point actually. I'm sorry I'm interrupting you, but that's a very important point जो आप कह रही हैं रिंकी. We'll talk about that a little more in detail, but please go on. That's a very important point that you're saying. जी. Yes. So for 2 years I did not contact any big studio. I was like, यहीं पे ही करेंगे. अच्छे से मैंने crowd किया. So I will give my entire credit to those 2 years of crowd ambient dubs that I did. The senior artists I met, to see them perform in front of everyone, I was like, 10 लोगों के सामने क्यों बोलना है यार, मतलब अलग से बोलना है. I was so inhibited. But एक point के बाद you don't have an option. They ask you to do, वापस करो. And because there are less number of lines, आपको ज़्यादा मौका मिलता है. So that is how I started. And 2 years के बाद is when I got in touch with them. Wonderful. I mean, so nice to hear that. So, ईश आप बताइए, आपकी शुरुआत कैसी हुई? आपको कब लगा कि यार ये वॉइसिंग बहुत सही चीज है, मुझे यही करनी है? When did you think of this? So my story is a little different. मैं corporate job में था. I was working in China for good 14 months. And, yeah. So that was the turning point कि यार ये तो नहीं हो रहा. So then I came back to India. फिर समय जी, like everyone knows, he introduced me to the industry. And then मैंने crowd शुरू किया वैसे ही. और मेरे लाइफ का पहला crowd dub था. एक बहुत बड़े इंसान थे. तो मैं ठहरा बॉम्बे का लड़का. तो मेरी भाषा भी अच्छी नहीं थी. And there was a line in which I had to pay respect to the character opposite to me. तो है लगाना था लास्ट में. और मैं बॉम्बे का बोल रहा हूँ है. And यहाँ 20 लोग बैठे हैं already, and this is the first time I'm ever facing the mic. Right. तो मैं conscious, and after like good 7-8 takes भी वो है नहीं आ रहा है, वो है ही आ रहा है. जी. So that was one point. उसके बाद मैंने क्या किया, that while commuting from point A to point B, मैंने read करना start किया. While I'm reaching somewhere for my crowd dubs, जोर से पढ़ता था. घर पे भी अगर हूँ तो मैं अपने फोन का recorder चालू कर लेता था. And I used to listen to what I have pronounced or how I've said it. So that was a very big help, I would say. And of course, crowd तो is always helpful. उसमें आपको 20 में से एटलीस्ट 5-7 नए आर्टिस्ट, जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, उनसे काफी कुछ सीखने मिलता है. तो yeah, for me it was the corporate job which by like through which I ended up in the voicing industry. Correct. But I mean, I'm so glad to hear in a way आप सबने कहीं ना कहीं
क्राउड से शुरुआत की है और Yes. क्राउड से सीखना शुरू किया, आपसे जो सीनियर्स थे उस क्राउड में उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया, एंड यू नो यू वर परसिस्टेंट इनफ टू फॉलो अप विद द स्टूडियोज एंड यू नो कीप गोइंग देयर, कीप ट्राइंग टू सिट एंड लर्न कि ये जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू जस्ट वॉक्ड इनटू द इंडस्ट्री आई थिंक, बट यू मेड श्योर दैट you know you put in the work, आप वो मेहनत करें जिसकी जरूरत है, especially when Rinki was talking about this and I said it's a very important point कि she decided that मैं जब तक confident नहीं हूँ कि मेरी skills you know are up to par, मैं किसी स्टूडियो को अप्रोच नहीं करूंगी। जैसे अभी ईश ने भी बताया कि वो एक एक्सपीरियंस जो आपका हुआ कि जहाँ आपको समझ में आ गया कि हम जो बोलते हैं या जैसे बोलते हैं वैसा किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए शायद उससे बहुत विपरीत भाषा हो, या फॉर एग्जांपल शुरुआत में अगर डिस्कवरी वगैरह कुछ हो तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी टॉक नेचुरली, और फिर बट यू नो द होल वर्किंग ऑन योरसेल्फ ऑफ you know recording yourself aloud, reading loudly, hearing what mistakes you're making, you know ये सारी चीजें you are very important lessons. So I mean आई थिंक इस पूरे सेशन में हम इसी पर फोकस करेंगे कि इफ यू आर न्यू, यू आर एस्पायरिंग और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो यू नो जस्ट लिसन टू ऑल दीस यू नो 3 राइजिंग स्टार्स एंड यू नो अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या प्रोसेस अप्लाई किया था। जैसे एक पल पर रिंकी ने जो कहा था कि इंसेसेंटली उस स्टूडियो को कांटेक्ट करना, यू नो ऑलमोस्ट यंग एंड द शेमलेस हो गया था हमारा ये सेशन उस पर, बट यू हैव टू बी द होल आइडिया इज कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये काम पसंद है, और अगर इफ इट टेक्स 3 phone calls for me to make them understand that I'm really, you know, someone who's eager to do this work, then why not? I mean, उस 3 phone calls से क्या फर्क पड़ जाएगा? Once the work starts, it starts, and you guys are here. Yes, Rinki, please. And I also feel that they anyway have so many artists available that it's not that they don't want to call you. It's like they anyway have a big pool. So you really have to be persistent, insistent that they realize कि चलो एक बार बुला के try करते हैं. And when you get that chance, make the most of it. Because there are too many people in line, and it's not that they don't want to give you a chance. Like we were new, all studios have given us a chance. So, but it's just you have to put in the work initially, and you have to be like कि मैंने एक बार call कर दिया, नहीं बुलाया, this doesn't work. They have 200 other things on their plate. You have to take care of yourself. Right. So that's a very important point that you brought up, and it was one of those questions that I was going to cover eventually. But अब ये बात आ ही गई है तो चलिए इस पर ही बात करते हैं कि इंडस्ट्री में you guys are well aware कि बहुत competition है. There are a lot of voice artists जो you know हर दिन इस फील्ड को एक्सप्लोर करने आते हैं, especially अब सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बढ़ गई है फील्ड की. So initially you know when you came in, I remember अभी you know अपाला ने भी कहा था कि वो जिस रूम में आई वहां पे बहुत सारे लोग थे, and you know it started off. So how do you deal with competition? Do you think about it actively? क्या आप सोचते हैं इस बारे में, या आपको इनिशियली लगता है कि इतने सारे नए आर्टिस्ट हैं? अब तो खैर आप लोग सब you're all settled in the industry, but initial years में या initial months में जब आप हर दिन you know किसी स्टूडियो में जाते थे, especially crowds वगैरह में, you end up seeing a lot of new faces. क्या आप लोग एक्टिवली सोचते थे उस बारे में कि अरे यार ये, या फिर जब आप उनको कहते हुए कुछ सुनते थे माइक पर, यार इनकी आवाज अच्छी है या इनका कमांड बेटर है, हाउ डिड इट गो इन योर हेड्स? क्या प्रोसेस था आपके दिमाग में? व्हाट वाज द थॉट? एनी वन ऑफ यू कैन यू नो टेक दिस अप, स्टार्ट एंड देन वील फॉलो अप विद द अदर टू. आई थिंक स्टार्टिंग में तो सीखने का ही इतना, ऑफ कोर्स सामने इतने सारे आर्टिस्ट होते थे, उनका कमांड लैंग्वेज पे देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के लगता था कि हम कब तक वहां तक पहुंचेंगे और कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे रिंकी ने बोला कि बहुत ऑकवर्ड लगता था स्टार्टिंग में आके कोई लाइन भी लेना क्राउड में, और फिर उसके बाद जब रीटेक्स के लिए बोलते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, आप इतने आप ट्रेंड नहीं होते हो इस चीज से, एक्सपोज्ड नहीं होते हो कि लोग आपसे बोले कि आप रीटेक लो, नहीं आपका टोन नहीं आ रहा है, तो आप कभी कभी ना बहुत वैसे हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस लो चला जाता है. सो इन माय केस आई वाज एक्सट्रीमली लकी, जो मुझे ग्रुप मिला था, जो मुझे सीनियर्स मिले थे, वो इतने अमेजिंग थे. मतलब मुझे याद है पहला दिन मैं रिंकी से पहले दिन अपने डबिंग के फर्स्ट डे में रिंकी से मिली और बाकी लोगों से मिली थी. हाँ, तब से हम लोग, इट्स बीन 6 years वी आर फ्रेंड्स. तो मुझे लगता है कि सबने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया, इतना वो दिया कि यू नो इट टेक्स a certain amount of time.
और आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस के साथ आप वहां पहुंचोगे। तो मेरे लेवल पे मैं बहुत लकी रही कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ शिट मैं नहीं कर पा रही हूँ या जो भी है। धीरे धीरे बहुत ही फन प्रोसेस था। हाँ, लेकिन जब आप अपना समझते हो कि आप रेडी हो चुके हो और आप बाहर निकलते हो काम के लिए, तब आपको थोड़े समय तक इस चीज के लिए मैं बाकी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट को भी कहना चाहूंगी कि कई बार आपको बुरा लगता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हो, यू फील सैड कि यार मैंने तो इतना अच्छे से ऑडिशन दिया, मेरा नहीं हुआ। या कई बार डायरेक्टर्स आपको ऐसे कहते थे कि आप इस पे काम कीजिए, और आपको लगता है आप 2 साल से इसके लिए प्रिपेयर हो रहे थे फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक फेज, ऐसे फेजेस कई बार आते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आपको लगता है कि आप कर रहे हो। Honestly, ये आते ही रहेंगे। मतलब मैं आई एम सिटिंग ऑन द 15th ईयर प्लस मार्क हियर, बट आई एम टेलिंग यू कि ये फेज अभी आते हैं और डायरेक्टर्स आपसे कहते हैं कि यार इस पे थोड़ा काम करो, क्या कर रहे हो यार तुम, अभी लेजी हो गए हो, या तुम्हारा वो पैटर्न बन गया है, तुम थोड़ा ब्रेक करो, थोड़ा कुछ फ्रेश करने की कोशिश करो, या तुम्हारा ऑडिशन नहीं हो पाया, किसी और का हो गया, व्हाटएवर, ऑल दीस थिंग्स विल कंटिन्यू हैपनिंग। The important point like she's saying is कि आप you develop a mindset कि अच्छा ठीक है चलो वर्क कर लेंगे। Exactly, तो वो मुझे लगता है आप, हाँ exactly, कि आप अपनी वॉइसिंग पे तो काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने पेशेंस लेवल पे बहुत काम करते हो इस पूरी जर्नी में। ये मैंने सीखा है कि उसको कैसे, पहले में ऐसा होता था कि अरे यार क्या अच्छे से तो किया था, कि अब ऐसा लगता है कि ओके फाइन ठीक है। तो वो मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो पेशेंस सीखा है। तो बाकी एस्पायरिंग आर्टिस्ट को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वॉइसिंग और सारे स्किल सेट के साथ साथ पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस वॉइसिंग में, सो आई थिंक अब ऐसा फील नहीं होता। अब किसी को देख के ये नहीं लगता कि ओ कितना कंपटीशन है या काफी कंपेटिटिव है, सब ऐसा लगता है कि you'll do it eventually, आपका जहाँ पे होना है। और आपका, और it requires a lot of learning every day। आपका एक learning, ये learning कभी खत्म नहीं होती। Absolutely, agreed, 100%, बिल्कुल सही कहा। Ish, what about you? आपको क्या लगता है? What about the competition? मुझे ऐसा लगता है कि it's not every character is meant for you to begin with। कई दफा ऐसा होता है कि आपने अगर आवाज आपकी मैच हो रही है, परफॉर्मेंस शायद मैच नहीं हो रही है, या कई दफा परफॉर्मेंस मैच कर गए पर वो आवाज जरा भी नहीं जा रही है। सो इट्स नॉट एवरी टाइम ऑन यू कि आपने बुरा परफॉर्म किया होगा या बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। इट्स कम्प्लीटली द क्लाइंट्स कॉल, बिकॉज उसमें मुझे लगता है कि आप चाहे आपने 100% दिया हो, पर वो अगर उस बंदे पे आपकी आवाज ही नहीं जा रही है तो इट डजंट एड अप टू द कैरेक्टर, और उसमें हम कास्ट नहीं होंगे। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। आई फील के रिजेक्शंस, अप्रिसिएशंस हमें करना, ये सब इसका पार्ट है। तो नॉट एवरी कैरेक्टर इज मेंट फॉर यू। करेक्ट। आप काफी कोशिश कर लो, उसके बावजूद हो सकता है कि आपको उसमें ना हो कोई और बंदा। आप कह रहे हैं कि बेसिकली कंपटीशन के बारे में सोचने से ज्यादा बेहतर है आप ये सोचें कि उस कैरेक्टर के बारे में आपने क्या, हाउ वाज द वॉइस दैट यू गेव एंड मे बी हाउ इट डिड नॉट सूट, या अगली बार अगर इस रेंज का कोई कैरेक्टर आए तो आप क्या करेंगे, या you think in terms of the character, you don't think in terms of the competition, which is a great approach I think। yeah मतलब मुझे लगता है कि अब वो मेरी वॉइस रेंज ही नहीं। अगर कोई 20 साल का करना है मुझे, लेट्स से फॉर दैट एग्जांपल, और मुझे बुलाया गया है, आई नो इट इन माय हेड कि इसमें मेरा 100% नहीं जा रहा है, राइट, सो आई विल स्टिल गिव इट अ शॉट इफ आई कैन पुल इट ऑफ वेल एंड गुड। इफ आई कांट, देन ऑफ कोर्स दे हैव बेटर ऑप्शंस फॉर दैट एज ब्रैकेट और फॉर दैट कैरेक्टर। This is also a great point, Ish, because so early on in your career, to be able to understand properly कि आपकी voice range क्या है, to practically be able to tell that to people कि boss इतना है, मेरी age range इतनी है, मैं इससे young आप करने बोलोगे तो थोड़ा सा I'm letting you know right now कि वो थोड़ा सा forced लगेगा, या फिर वो लंबे देर तक sustain करना है तो मुश्किल हो जाएगा। To be able to know these things also so early on in your career is such an important thing, because many of us discover these things about us much later when that kind of a project comes in। Like honestly मुझे नहीं पता था कि Ben 10 कर रहा था तब की इतनी रेंज है मेरी, क्योंकि तब उससे पहले उस तरह की प्रैक्टिस नहीं की थी। बट आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड द काइंड ऑफ वोकल रेंज, यू आर वोकल अबाउट इट। आप बता रहे हो लोगों को कि देखो यार ये इस रेंज से थोड़ा सा आप नीचे करने बोलोगे तो थोड़ा सा शायद पोस्ट लग सकता है, बट आई विल स्टिल गिव इट अ शॉट, व्हिच इज ब्रिलियंट टू हियर। व्हाट अबाउट यू रिंकी, आप बताइए कि क्या लगता है कंपटीशन जब होती है सामने इतने सारे लोग हैं? आई फ्रैंकली फील कि कंपटीशन का मैंने सच में नहीं सोचा आज तक। Also because new people की अगर बात है तो हम भी न्यू ही थे। We were very welcome, very nice। मैं तो अपना पर्सनल वो बोलूंगी। And more than the competition, I feel कि I should focus on my work, क्योंकि बहुत बार जैसे एक तो होता है कि आपकी voice सूट ही नहीं करती, like he said, so it's a different thing। Sometimes for one character maybe you suit and maybe someone else is also good। तो उसमें rather than thinking कि दूसरा बुरा हो, I would rather want
कि मैं ज्यादा अच्छी हो जाऊं कि वो ऑटोमेटिकली मुझे ले, बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू बी चोजन क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है. आई वुड वांट टू बी चोजन बिकॉज दे वांट मी. मतलब आई शुडंट बी कि अभी कोई नहीं है तो इसको लेते हैं. आई वांट 5 ऑप्शन है बट स्टिल वी वांट टू टेक रिंकी. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी आप खुद पे ही फोकस करो, क्योंकि लोग तो आएंगे. हम भी आए थे, हमसे पहले कितने साल थे, हमारे बाद भी आएंगे. ऑब्वियसली दैट यू कैन नॉट स्टॉप. तो उसका सोचने लग जाओगे कि और लोगों को नहीं आना चाहिए इज नॉट गुड. that's a very dark path to go on कि सिर्फ मुझे चुनो और कोई नहीं आएगा. That's not possible. You've come in, you've replaced, you know, you filled in a vacuum. वो लोग तो आएंगे. There will be a vacuum again. बिल्कुल लोग तो आएंगे और लोगों को आना ही चाहिए. Absolutely, that's a great point. So I mean, people should come to you for your work. I mean, they understand you know what your level of craft is, and they choose you out of those. You know, be one of those 5 people की नहीं उसी को चुनो क्योंकि मुझे लगता है कि वो परफॉर्म बेटर कर पाएंगे. whatever, you know, that's a great way to look at it. Just speaking to all of you, आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो I understand that all of you have a different shade to your personality, and I'm sure that this varies greatly when you're with friends and all, and I've seen you guys outside as well. मुझे बताइए, जब कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जो आपकी नेचुरल पर्सनालिटी से बहुत विपरीत है, लाइक इट्स ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम वेयर यू आर रियली इन लाइफ, मे बी यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, मे बी यू आर अ वेरी स्टोइक एंड साइलेंट काइंड ऑफ पर्सन, और जब इसका एकदम उल्टा कैरेक्टर आता है व्हिच हैज एन ऑपोजिट पोलर ऑपोजिट पर्सनालिटी, तो आप उसे अप्रोच कैसे करते हैं? लाइक व्हाट डू यू थिंक goes through your head when you're trying to, you know, approach a character like that? Like maybe you're a very bubbly personality and you get somebody who's really serious or sad or stoic, या the vice versa, you know, तो आप क्या सोचते हैं जब आप माइक, स्पेशली बिकॉज हम जानते हैं सब कि ज्यादा वक्त नहीं मिलता हमें हमारे कैरेक्टर्स बनाने के लिए. आप स्टूडियो में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा चलो ये करना है, एंड द नेक्स्ट मिनट यू आर ऑन माइक एंड यू आर स्टार्टिंग, यू नो, तो ऐसा कुछ है नहीं कि वी कैन गो इंटरनल और व्हाटएवर, बट दैट व्हाटएवर टाइम यू गेट, आप लोग क्या, व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू गाइस फॉलो थ्रू दैट? Anyone? एक तो मुझे लगता है कि if you see when you start the project and when you see the video, मैं फ्रैंकली अपना बोलूंगी, मैं बैठ के इतना मैंने कभी सोचा नहीं है इस कैरेक्टर को मैं ये कर दूंगी. टिल द टाइम इट्स लाइक कुछ ऐसा ही कैरेक्टर हो where you really need to work on it and make it something, जो बहुत बार एनिमेशन में होता है, जो हिंदी में अडेप्ट होता है, तो आपको हिंदी में उस कैरेक्टर का एक अलग फील बनाना होता है. तो वो एक अलग चीज होती है कि आपको अपना फ्लेवर डाल के उसका एक अलग वो बनाना है. अदरवाइज जैसे नॉर्मल अगर मैं लाइव एक्शन कर रही हूँ और मैं अगर एक्स्ट्रा मतलब एक्साइटेड रहती हूँ, द शो इज यू नो क्वाइट, लो ऑन एनर्जी, या क्वाइट, राइट. मुझे लगता है व्हेन यू सी द पायलट, व्हेन यू आर हियरिंग देम टॉक, वो ऑटोमेटिकली एज आर्टिस्ट आई थिंक हो जाता है. आई हैव नेवर रियली गिवन इट सो मच थॉट, पर जब आप सोचते देखते हो उसको तो आप थोड़ा सा तो फील में चले जाते हो कि अच्छा ये थोड़ा यू नो ऐसा होना चाहिए. बाकी ऑफ कोर्स द डायरेक्टर्स हेल्प यू आउट, अगर आपके अब फिर भी वो नहीं आ रहा है तो दे टेल यू अभी भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप कम करो. बट इफ यू आस्क मी कि मैंने बैठ के कभी सोचा है कि अभी मैं तो नहीं, मैं मुझे देख के उसी समय सुन के देख के इज हाउ आई डू इट. Right, so you're a very natural process कि आप you understand कि कैरेक्टर कैसे चल रहा है, you observe it for a while और फिर आप उस हिसाब से खुद को डाल लेते हैं. That's great, that's a great process to have. What about you, Ish? आप कैसे अप्रोच करते हो? मैं ज्यादा मतलब सिनेमा देखने में थोड़ा कम बिलीव रखता हूँ बिकॉज हम दिन भर वही करते हैं. तो बट आई ट्राई एंड पिक अप रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड देन इम्प्लीमेंट इट समवेयर. okay. आपके इर्द गिर्द बहुत पर्सनालिटीज होती है. जी. So it's always good to observe them. उनके थोड़े जो छोटे मोटे nuances होते हैं, the way they deliver. तो ये सब देख के काफी कुछ समझने तो मिल ही जाता है. And when you get a similar character to perform on screen, तो try करता हूँ कि somehow I pick up a few references from that particular person and try and deliver that. Sorry, I'm still here. There's an issue with the camera, but okay. Let's hear from Rinki. Sorry, from Apala. बोलिए अपाला. मेरा भी बहुत ही नेचुरल प्रोसेस ही, ऐसा कभी सोचा नहीं कि कैरेक्टर को कैसे, बट हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. लाइक कैरेक्टर अगर डब करना है तो उसका डिमीनर क्या है,
बैकग्राउंड बेसिकली अगर आपको किसी डॉक्टर को डब करना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। एक तो हमें मेंटली भी कुछ चीजों के बारे में पता है कि हाँ ये ऐसा रहेगा, एंड प्लस ऑल्सो ऑब्जर्विंग द कैरेक्टर नुआंसेस, जैसे ईश ने कहा, बैकग्राउंड मूड ऑफ द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पिच पे वो बात करना चाह रहा है, अगर वो मेरा नेचुरल पिच नहीं है, मतलब मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है, तो मैं उस पिच को मैच करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि बिकॉज माय पिच इज लाइक लिटिल ऑन अ हायर साइड, बट इट्स लाइक अगर वो बहुत ही सैड है और बहुत इस पिच पे बात कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा वर्क करना, एंड ऑल्सो द ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर किस तरीके से जा रहा है, तो करते करते फिर आप और उस कैरेक्टर के साथ खुद इवॉल्व हो, मतलब उसके साथ आप उसकी स्किन में जाते हो। बट या मूड एंड जेस्चर्स एंड द डिमीनर ऑफ द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं उसको सबसे पहले माइंड में रख के स्टार्ट करती हूँ उसको डब करना। आई लव इट बिकॉज कितनी खूबसूरत चीज है कि आप 3 आर्टिस्ट हैं, आप तीनों काम कर रहे हैं और आप तीनों का अप्रोच कितना निराला है। आप तीनों अपने अपनी तरह से एक कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। शी ऑब्जर्व्स द कैरेक्टर एंड डिसाइड्स टू देन मिमिक इट इन अ वे। इश ट्राइज की वो अपने आसपास जो एक्चुअल लोग हैं उनके कुछ डिमीनर्स या उनके कुछ नुआंसेस उस कैरेक्टर में डालें, और आप कोशिश करती हैं कि बिल्डअप करें एक बैक स्टोरी थोड़ी सी और फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को उसमें अप्लाई करने की और ग्राफ के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम सब कर तो एक ही काम रहे हैं, बट हमारे दिमाग किस तरह चलते हैं या हाउ वी आर अप्रोचिंग आवर वर्क, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। व्हाटएवर वर्क्स बेस्ट फॉर समबडी इज व्हाट वन शुड फॉलो। बट आई एम सो ग्लैड दैट ऐसे सेशंस होते हैं जहां वी आर एबल टू पीप इनटू एन आर्टिस्ट माइंड एंड अंडरस्टैंड कि अरे भाई सब इतना अलग-अलग सोच रहे हैं, सब इतना अलग-अलग कर रहे हैं और परफॉर्मेंस सबका इट्स ब्रिलियंट टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो मुझे बताइए कि living in a city like Mumbai, it's very difficult, और especially जब आप शुरुआत करते हैं इस सिटी में और इस फील्ड में, तो आपको समझ में आता है कि ये फ्रीलांस फील्ड है, आप खुद ही अपने मैनेजर हैं, आप खुद ही अपने सीए हैं, आपको खुद ही ये इनवॉइसेस वगैरह बनाना, ये सब दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर डिसिप्लिन टू डू, दिस इज नॉट समथिंग वी आर टॉट टू डू। तो इनिशियली ये सब कैसे मैनेज कर पाते थे आप, या व्हाट वर द हर्डल्स दैट यू गॉट, स्पेशली in terms of billing, invoicing, asking for your money? ये कुछ problems हैं जो नए लोग हमेशा सोचते हैं, या asking for your value or your worth, especially when you're new, ये एक बहुत I think important चीज है जो हमेशा थोड़ी सी overlook हो जाती है। तो आप लोगों का क्या रहा है I think overall outlook इस बारे में, क्या experiences रहे हैं in this area? Sorry, मैंने actually anyone yeah Rinki, please go for it. So initially I've never really negotiated for money, right? Because I feel, it's my personal thing, if I don't know what I'm doing, I'm not able to be confident enough to ask them for money. So I have never negotiated money initially. Right. I was like, काम दे दो. But I'm sure it's not the same with everyone, because it depends on everyone, where you are financially, all of that matters. But I think in fields where, these fields, art fields, you really need to initially forget about the money, because बाद में पैसा मिल जाएगा अगर आपको काम आना. So initially I've not negotiated money. I've just constantly done work. बस I'll just keep doing. Now I think, I feel you get to know also industry standards क्या हैं, किसी चीज पे किसको कितना मिलता है. Maybe you're not a star voice artist, but ठीक है, basic इतना तो आपको मिलना चाहिए, जो आपको maybe initially भी नहीं मिल रहा था, but that time I will not ask for it. Right. But today maybe I'll ask यार इतना तो दे, इतना तो आपको देना चाहिए. But I'm going to ask you, Rinki, and this is an important question, because आपका approach रहा था initially that when I was learning, I would not kind of negotiate on the price or जो मिल जाए या whatever it is. तो उसके बाद जब आपको रियलाइज हुआ कि अब मैं काम सीख चुकी हूँ, या आई नो द ट्रेड, आई नो हाउ मच आई कैन डिलीवर, व्हाट इज द क्वालिटी आई कैन गिव, तब वो नेगोशिएट करना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि द सेम पीपल हु यू वर वर्किंग विद ऑन व्हाटएवर दे वर गिविंग यू, एंड नाउ यू आर सडनली टर्निंग अप सेइंग कि अब आई नीड माय वैल्यू, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट इज व्हाट आई वुड इमेजिन. बट हाउ वाज इट फॉर यू? It was difficult. I have also not been called because of that. ठीक है. Correct. But I think वो 1-2 महीने की बात होती है, because it's not कि आपने directly कुछ आपकी लड़ाई हो गई, ऐसा तो कुछ है नहीं. Right. It's just for the other person to know
कि what they are asking is right and they should be paid. So अगर आप नहीं पे कर सकते, I'm ready to wait it out. And बाद में उन्होंने मुझे बुलाया है, and I'm saying this with all due respect and without any hope. Absolutely, you should be paid a certain amount after a point. Initially, I didn't know, I did not ask for it. But abhi I know a certain amount I should be paid. I know you are getting paid that much. You know, आप किसी और आर्टिस्ट को देते, बट एक वो चीज होती है कि अभी नए नए आए हैं, अभी तो इनको उसी में ही करवा लेते हैं. मैं आई मीन वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, कि उसी में ही करा लेते हैं, उनको लगता है ये कर लेंगे. So कभी you have to, and again, I don't think every one who's not negotiating or who's doing it in less amount, I'm not judging that person because सबके अपने finances होते हैं. Absolutely. Maybe someone is trying to get the job so that कि less money में मैं कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा. I need the money. That's also fine. तो मुझे ये भी नहीं है कि सबको unity बना के ये करना चाहिए. जो a lot of artists feel that also. That is the dream. I mean, I think that is the dream eventually, but we're working towards it slowly. वो हो रहा है धीरे-धीरे, but उसमें वक्त लगेगा. But I think जो एकदम initial आते हैं ना, वो नहीं कर सकते इतना negotiate. They should not be in a field जहाँ इतने सारे हर दिन नए आते हैं, उनको streamline कर पाना is a little difficult. I have heard a lot of times कि देखो हम we are leaving the project for because we should be paid an X amount and ये लोग आके Y amount में करें. तो वो लोग अभी आए वो करेंगे Y amount में because they want to do that job. I would have also done it. So I'm just saying कि first negotiate and once you reach a certain level you should negotiate. But we should not judge people जो उससे less करने में ready हैं. I think they would have their. Yeah. Okay, that's a great point of view. What about you, Ish? आपका क्या take है इस पे? How difficult was it navigating? Yeah. I feel initially तो आपका क्योंकि work experience भी इतना नहीं होता है, तो you are still learning. तो उस दौरान budgets को लेकर I think that should be the least of your concerns initially. Right. Because पहले तो craft को थोड़ा समझ लो, सीख लो, basic जान लो. Like I remember संकेत भाई, like पहली बार सांस भी नहीं निकलती है माइक पे. क्योंकि वो भी आपको सुनाई पड़ रही है, तो you are so scared कि अरे everything is getting recorded, right? Yeah. तो पहले तो आप एक बार काम सीख लेते हो, फिर उसके बाद तो आपके रैपो भी अच्छे बनते जाते हैं इंडस्ट्री में लोगों के साथ. देन आई फील जब काम अगर इन अ वे बेटर करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू अपने आप हो जाती है. करेक्ट. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जहां बजट्स नहीं होते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स योर रिलेशनशिप विद द हाउस कि अगर हमने अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया तो कभी आएगा कोई एवरेज प्रोजेक्ट जहां आपके बजट्स नहीं है उतने. सो यू कांट बी रिजिड अबाउट इट कि अरे कम क्यों या whatever. Like I think that shouldn't be the concern initially जब लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में. The main idea is to learn it so that people. Yeah. Exactly. Yes. So I think working on yourself and then working on relationships is like the fastest way to make sure that you start getting your value. And also I think building a transparent relationship with the house that you're working in terms of कि जब that house is transparent enough to tell you कि इस project में हमारा budget कम है. It's not कि the next 100 projects the house keeps telling you कि इस project में हमारा budget कम है. There will be projects where the house, if you understand, if there is a project where the house says कि नहीं इसमें there's a decent amount of budget and we'll make sure that you're paid well. When that also happens, then you understand कि it is a transparent relationship, and then you're okay with them kind of you're okay with doing the plus and minus. Apala, what's your take on this? What do you think about this? Definitely, I agree with Ish and Rinki कि starting में मेरे साथ भी ऐसे ही था कि budget को लेकर मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था. मुझे पता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मेरी रेंज एक्सप्लोर करनी थी उस समय. खुद को एक्सप्लोर करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, खुद की वॉइस को, क्योंकि इसने बताया कि जब आप माइक फेस करते हो आपको पता चलता है आपकी रियलिटी क्या है. तो आपको जब आपको आपकी अपनी रियलिटी पता है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए इसके. मैं बोलूंगी कि आप मुझे बुलाओ, मैं इट्स ओके, आप देख लेंगे बजट. सो मेरे साथ भी ऐसे ही था. जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे पता चला कि हाँ बॉस अब मैं थोड़ा यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ इतना, क्योंकि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना हमें मिलना चाहिए. अब मैं बोल सकती हूँ, पहले मेरा कोई से नहीं था इसमें. तो मैंने भी वही किया जो रिकी और ईश ने कहा कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया बजट के ऊपर, क्योंकि मुझे खुद बहुत कुछ सीखना था. अभी भी सीखना है, बट स्टार्टिंग में तो
But okay, from a perspective of a person जिसे इस फील्ड में आना है या जो आना चाहते हैं, क्या आप लोग कह सकते हैं या कह पाएंगे confidently कि after this many years of working in the industry, you are now well settled and you know you're okay in terms of the kind of work you're doing and the kind of money that you're earning. It's a good place that you're in. Are you able to say that confidently? Because then you know somebody who comes in new, they always worry about this thing. मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई जो भी अगर आप नौकरी वोकरी कर रहे हो और आपको वॉइसिंग करनी है तो नौकरी छोड़ना मत जब तक आपको एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ वर्क ना मिले या आप आप उस लेवल पर ना आ जाओ. बट कई बार लोग आ जाते हैं and then they think कि अरे इतना पैसा है या नहीं, and that's the first question people ask. And you know, like Rinki said, obviously we can't judge anyone based on what their question is because it might be something that's important to them. But क्या आप लोग कह पाते हो कि or you are seeing yourself, you know, you've seen yourself grow in terms of both, in terms of work, in terms of the quality that you deliver, and in terms of the remuneration that you've been getting for your projects, and you see it just going on an upward trend. Are you able to say that to newcomers that come? Yes, Apar, please. I think सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इसमें पैसा होगा, राइट, तो आप बहुत गलत बात चुन रहे हो खुद के लिए, है ना? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये वॉइस आर्टिस्ट, आई थिंक मुझे वॉइसिंग ट्राई करना चाहिए शायद, हाँ पैसे मिलेंगे, कितना आसान है, जाके माइक पे बोलना ही. तो मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आपका पोस्टर देखा वॉइसिंग का, कैसे करना होता है, माइक के सामने बोलना है ना, हमारा भी करवा दो ना. तो मुझे लगता है कि ओके, अभी इसको मैं क्या समझाऊं कि it requires a lot of hard work and patience, dedication, focus, and if you are passionate enough, मतलब आपको लगता है कि आपको ये करना है, मतलब कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में आप इसलिए आए कि आर्ट आपका मोटिवेशन है तो ही आप आए. अदरवाइज तो सबको पता है कि कितनी अनसर्टेन फील्ड है. और यहाँ पे आप कब सक्सेसफुल होगे इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है. बिल्कुल. आप 10 दिन में अच्छा काम करने लग जाओगे या 10 साल में करोगे, कोई नहीं बता सकता. राइट. सो आप पैसों के लिए आ रहे, तो मुझे तो लगता है कोई मुझसे पूछता है ना कि कितने पैसे मिलते हैं, तो मैं तभी बोल देती हूँ कि बॉस बिल्कुल नहीं मिलते यार, बहुत मत आना यहाँ पे. तो ये मुझे लगता है. और किसी को ये बता पाना कि अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आप यहाँ से, आप जैसा कि आपने पूछा, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कभी भी सही तरीके से आंसर किया जा सकता है. राइट. बट आर यू okay, let me rephrase it and let me ask it to you in a way that are you happy that you're here as a voice artist after these many years of starting out as ऐसा होता है कभी-कभी कि हमने एक पोस्ट ले ली या एक इंजीनियरिंग का फील्ड ले लिया, पर 3 साल बाद रियलाइजेशन आता है यार क्यों किया मैंने या व्हाटएवर, आफ्टर दीस मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री, डू यू थिंक यू लाइक इट, आर यू हैप्पी हियर? I am extremely happy. Like I think कि बिल्कुल सही जगह पे हूँ मैं. I enjoy my work. मतलब सबसे पहली चीज ये है कि आप काम पे जाने के लिए एक्साइटेड हो, यही एक चीज होती है जिससे आपको पता है कि आप खुश हो. तो मुझे लगता है बहुत खुश हूँ मैं. और यहीं पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है ना, जब आप वॉइसिंग पे आते हो या किसी भी फील्ड में आते हो और आपको लगता है कि जैसे डबिंग इज समटाइम्स इट इज अ वेरी लोनली जॉब, राइट. आप घंटों तक एक स्टूडियो के अंदर बंद है, तो वहां पे इंसान का कई लोग फिल्टर हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है यार. करेक्ट. लेकिन बट आपको मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है ये सब वॉइसिंग करने में. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी. राइट. सो या आप बताइए रिंकी, आयुष, आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, are you going? I'm also like very happy with where I am. I have seen personally my growth because I have seen how I have performed earlier and I have seen now also. So I know I can see the growth is but yes, मतलब money initially तो नहीं है. So अगर कोई आ रहा है, either come with a financial backup where you can give that much time, be ready to give that much time. And उसके बाद भी I think today it's been 6 years for me in this industry. So abhi I am feeling comfortable. Maybe someone else might not be comfortable in 6 years. Maybe they are not making the amount of money that they would want to make. And maybe koi aur mujhse 3 times bana raha tha after 6 years. So money I think is I will say for myself I'm comfortable where I am. I mean obviously there is so much more to do. But it is a very personal journey. So मैं किसी को ये नहीं बोल सकती 5-6 साल में आप सेट हो जाओगे. It only depends on the kind of work you do. सेट का डेफिनेशन क्या है? करेक्ट. It depends on उनका सेट का डेफिनेशन क्या है. करेक्ट. वो बिल्कुल अलग हो सकता है. बिल्कुल. Exactly. Right. So आप बताइए, what do you think?
मेरा तो सर फॉर मी द प्रोसेस इज सो ब्यूटीफुल. अगर हम दिन में 3-4 स्टूडियोज भी जा रहे हैं, हर जगह अलग कैरेक्टर है. So you get to do different things in the same day. Absolutely. And also मजेदार बात ये कि I always keep telling this to our artists, के fellow artists, कि यार और कोई freelancer बताओ जो after spending so many years also इतना occupied है. Correct. Who's working every day, freelancers. Right. There's a reason why we call ourselves freelancers, क्योंकि हम project to project काम करते हैं. And I feel blessed for the fact that as a freelancer, I have ample amount of work that my day is getting occupied working. Right. Doing we were working during the lockdown as well, so you're right. Absolutely, yes. Remote dubs and everything. Correct. So yeah, मेरे लिए तो बहुत मजेदार है. मैं तो कुछ और करने की सोच भी नहीं रहा हूँ. Nice. So I'm really happy. So थोड़ा सा इसको काफी intense हो गया, काफी real हो गया. So let's talk about your work and your characters. So tell me some favorite characters of yours, and let's hear your voice for those characters. Let's hear some famous lines that you guys do. Let's let the people understand कि आप क्या करते हैं, and what is your favorite character. हमारे favorite character जो आप voice करते हैं, that's a very different thing. But आपके हिसाब से आपका favorite character क्या है, उसकी आवाज कैसी है? Please हमें सुनाइए थोड़ा सा. I have mostly मैं इतने सारे हैं क्या अरे नहीं मैं कुछ डायलॉग सोच रहा हूँ किसका याद है. मेरा हर कैरेक्टर एक सुपर हिट कैरेक्टर है. क्या कैरेक्टर्स है, क्या बोलूं. मैं तो अपने so then tell me, I'm sure that people come up to you and say कि वो जो आपने काम किया था, that was really amazing or whatever. That one character that people always come up and tell you about. What is that? I feel I've done my favorite projects in live action. So like I had dubbed for Deepika in Fighter, I had dubbed for Kriti Sanon right now for Dopati. But I am not mimicking them. So अगर कोई मुझे बोलता है कि तूने दीपिका की आवाज निकाल के बताओ दीपिका की. दीपिका की तरह जरा बोलना यार. बोल के दिखाना. अभी की दीपिका वाली आवाज निकाल. I am not a mimicry artist. That is again an immensely difficult field. Yes. मतलब I remember it's making me think of that one reel जो बहुत famous हुई थी मिसेस मेड शिंदे, उनकी जो रील थी एक, जिसमें ही टेलिंग कि एक आप पिच ऊपर करोगे तो ये आवाज बन जाएगी, बेस नीचे करोगे तो ये बन जाएगी. इट्स लाइक ही हैज मतलब he has a formula for the actors. Yes, he has maths for this art. Yes, तो वो तो डिफरेंट ही है. Absolutely. So, like I said, if I've done a Deepika or a Kriti Sanon, I cannot mimic them. But yes, when I'm watching the pilot, but that's one of your favorite characters. But that's one of your favorite characters that you think is, it encompasses your craft very well. Yeah. Yes, I really enjoyed doing Dopati, Kriti Sanon for Dopati because anyway, two characters in the film, right? Absolutely. Yes, so 2 characters and उन characters के भी बहुत सारे range. So emotional personally, graph, that would be my favorite. Nice. पर अभी मैं कृति सैनन की मिमिक्री नहीं कर सकती. नहीं, that's okay. कृति की आवाज से क्या फर्क पड़ जाएगा यार. आप एक वॉइस एक्टर को मॉडरेट करने के लिए बुला रहे हो, वो भी आपसे वही कह रहा है कि दीपिका पादुकोण की मिमिक्री करके बताओ, तो क्या फायदा है यार. So I'm not going to insist, but I'd like to know कि what is your character that you think बटन चालू करके जरा. यार टेक्निकली लोग पूछते ना कि अरे आप वॉइस आर्टिस्ट हो, अच्छा उसकी आवाज निकाल के दिखाओ. करेक्ट. नहीं, but I genuinely just want to know कि ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो आप बताएंगे किसी को कि जिसमें आपको लगता है कि आपने आपका क्राफ्ट अच्छी तरह से the whole essence of your journey आपने मिला के उसमें परफॉर्म किया हुआ है. What are those current characters that you've done or recently that you've voiced for, जिसमें आपको लगता है कि ये अगर कोई देख ले तो जान जाएगा कि आप you've come a long way from where you started, in terms of performance. Just the names are also fine. वो लोग देख लेंगे यार अपने आप. I can remember one project, True Detective season 1, Matthew McConaughey. Oh, what a character. Gosh, that was an experience to dub. मतलब I had not expected that I'll be able to pull that off. Right. But I feel I've done a decent job. So yeah, that's one of my recent works, and which I really liked it. Wonderful. I love the series, so I'll definitely go and watch it now. Thank you for sharing. What about you, Apala? Yes, Rinki. नहीं बोलिए Rinki. Sorry. Rinki. No, I was just adding to that it feels really good when you listen to your voice and you happen to like it, because mostly होता है
बहुत रेयरली होता है। अरे this emotion should have been this, what have I done, ये थोड़ा low correct. And sometimes when you are happy with it, you're like, अरे यार ये तो क्योंकि कई बार सामने वाले नहीं पकड़ पाते, बट आप पकड़ लेते हैं कि आपने क्या गड़बड़ की है, या आप you know where you messed up, you always know. तो that those rare projects की जहाँ पे those rare projects की जहाँ पे everything comes together. Yes. अपाला, आप बताइए आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है जो आपने वॉइस किया है? मेरी रीसेंट 2 फेवरेट शोज हैं जिसमें मुझे थोड़ा मजा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया करने में और अपनी आवाज थोड़ी अच्छी लगी। तो एक लाइव एक्शन है पैरासाइट, वो मुझे करने में इसलिए बहुत मजा आया क्योंकि हाँ, बिकॉज एक ही फ्रेम में मैं 2 वॉइस में एक, मतलब यू नो मैं खुद से कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे अंदर पैरासाइट है, तो वो जो मेरा ही वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टर ईगो बन गया है, ऐसा कुछ है जो कॉन्वर्सेशन इनर वॉइस बेसिकली, इनर वॉइस। हाँ, तो बेसिकली एक ही फ्रेम में मैं नाइव, अंडर कॉन्फिडेंट और एक रेगुलर लड़की हूँ, और साथ में जिससे बात कर रही हूँ वो भी मैं ही हूँ, जो श्रूड, इमोशनलेस और बहुत ही यू नो डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनालिटी। तो वो मुझे बहुत मजा आया करने में एक साथ, यू नो साइमल्टेनियसली। एंड वन ऑफ द एनिमेज दैट आई हैव डन रिसेंटली, माय हैप्पी मैरिज, जिसमें आप भी हैं, राइट? ओह यस। तो वो मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि उस लड़की का ग्राफ धीरे धीरे जो हर एपिसोड के साथ बदलता है। पहले उसको लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है, फिर उसे धीरे धीरे समझ में आता है, एंड देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे जाके वो खुद अगेन अपने ऑल्टर ईगो से बात करती है जो उसको डराना चाह रही है। तो आई थिंक जहाँ पे बहुत सारे वैरायटी करने मिलती है आपको, और आपको अपने ग्राफ के साथ यू नो एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, वैसे रोल्स मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक ये दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं। करेक्ट। सो एक लास्ट क्वेश्चन लेट्स ट्राई एंड यू नो डू बिफोर वी काइंड ऑफ एंड अप दिस सेशन। यू नो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये फिगर आउट करना कि अब सोशल मीडिया हैज बिकम अ ह्यूज थिंग, एंड यू नो आई एम ग्रेटफुल दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक IVF एग्जिस्ट, जहां ये पूरी टीम मिलकर ये हर साल ये इवेंट करती है कि जहां लाइक आई सेड इंटरेस्टिंगली इनफ इस कॉन्वर्सेशन में भी वो बात आई कि सारे आर्टिस्ट कैसे सोचते हैं, कैसा प्रोसेस है, क्या अप्रोच है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो नए लोगों को जो इस फील्ड में आ रहे हैं, या इवन हम सीनियर्स को भी किसी किसी का पर्सपेक्टिव सुन के कुछ नया समझने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ यू नो यू लर्न अ लॉट एवरी ईयर। पर अब सोशल मीडिया भी यू नो एक ऐसी चीज है कि जहां से अवेयरनेस बढ़ रही है। How important is it as new artists to work on you know building a social media profile, do you think? क्या आप लोग उस पर actively काम कर रहे हो? Do you think it's important? What is the thought process behind that? Is it helping people get work? कैसे चल रहा है ये? थोड़ा I feel वो क्योंकि थोड़ी प्रोजेक्ट्स अपलोड करने की बंदिश है, like we can't even वो तो है, वो that's a gray area, yes। वो कभी समझ में नहीं आता, वो हर दिन नया रूल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है as a platform, अगर हम एक आध क्लिप डाल दे अपने पेज पे या कहीं पर, so I think we are diverting our audience also to their platform। अगर कुछ हजार लोग भी देखते हैं, you're helping the project, right? Yeah, I feel उसमें से अगर कुछ लोग भी जाकर सब्सक्राइब कर देते हैं कोई प्लेटफॉर्म को जाके, तो वो it's an add-on to the platform, correct? Or they even end up going and watching the show, right? Absolutely, exactly. Yes. तो I feel this is one problem that we face as an artist कि हम अपलोड नहीं कर पाते। हम डालना चाहते हैं काम, बट क्या डालें समझ में नहीं आता, या कैसे उसको प्रेजेंट करें, कैसे अलाउड ही नहीं है कुछ भी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो फिर वही लगता है मुझे कि एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट के पास ये एक वे है कि अपनी सैंपल डेमो रील्स जो होती हैं, राइट, वो अपलोड कर सकते हैं। लोग फैन डब्स भी डालते हैं, तो वो अपनी रेंज दिखाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल है। ये मुझे भी इसने ही हेल्प किया था कि अपनी सैंपल्स मैं बनाती रहती थी बार। राइट। वो इम्पोर्टेंट है। प्लस आई थिंक सोशल मीडिया से एक चीज अच्छी है वॉइस आर्टिस्ट के पास कि उनको पता चलता है कि वर्कशॉप्स कहाँ यू नो वॉइसिंग की वर्कशॉप्स के बारे में, जो आजकल इतने अच्छे वॉइस, आई थिंक इवन ऑडिशंस अब स्टूडियोज डालना शुरू कर दिया है, स्टूडियोज में ऑडिशंस हो रहे हैं, या राइट एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया इस लेवल पे मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल है। जब हम आए थे, जब मैं आई थी, तब इतना कुछ एक्सेस नहीं था इन सब चीजों को, बट अब एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट के पास, इनफैक्ट जैसे कि आपके वीडियोस में देखती हूँ जिसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या कैसे ब्रेथ वर्क पे काम करें, कैसे अपने
ये रियल चैलेंजेस होते हैं। क्या होता है, काम मिलने के बाद आप जब लॉन्ग आवर्स में काम करते हैं तो आप अपनी वोकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है जब मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा काम मिल गया, अच्छा सब कुछ है, बहुत जल्दी मेरी आवाज में जो वो थकान दिखने लग जाती थी, ब्रेथ चली जाती थी। करेक्ट। हाँ, और ऐसा लगता था कि अब इसको कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए लोगों के पास काफी एक्सेस है, वीडियोस देख के सीख करके, अच्छा मुझे इस पर भी काम करना है। So that's one way कि जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। रिंकी, what's your experience with social media? आपको क्या लगता है? I think it's almost the same only. I have always put out my work जितना कर सकते हो, because I feel at way you can get in. मुझे नहीं पता how much it will translate, but I like to put my work. And also जो सीने आते हैं, जैसे आपका भी like Apala said, it really helps because आप लोग भी जो वीडियोस डालते हैं usually ये सब वर्कशॉप में होता है, where you have to pay money and you know get all the information, सब कुछ फ्री में मिल जा रहा है वो। So I think not just new artists, मुझे चार्ज करना शुरू करना चाहिए इसके लिए। संकेत is thinking now, अच्छा फ्री में सब इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके लिए लोगों ने इतने सालों तक मेहनत की, आप लोगों को पता चल रहा है। नहीं। So I think you have to be very intelligent कि अभी ये सब information मिल रही है तो ले लो सारी information। नहीं, so but I mean this is a great note कि जिस पर आप we can end today's session is that आप लोगों ने भी जाने अनजाने में अपने बहुत सारी प्रोसेस को अनकवर कर दिया लोगों के सामने मुफ्त में। तो अगर if you are an aspiring artist, India Voice Fest sessions please हमारा रास्ता इससे पहले कि ये शपाला और रिंकी इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दें, आप प्लीज ये वीडियोस यूट्यूब पर देख लीजिए to understand what's गूगल पे नंबर उनके जीपे क्यूआर कोड्स वगैरह फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। But on a very positive note, thank you so much guys, you've been very forthcoming। आपने बहुत सारी अपनी प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंटली शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और कुछ शुगर कोट नहीं किया। एंड आई एम रियली ग्लैड कि दिस वाज सच अ क्लियर एंड कंसाइज कॉन्वर्सेशन कि जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात कर पाए, जिससे कोई अगर इस फील्ड में आना चाहे तो दे हैव अ क्लियरर पिक्चर। So I'm just going to request Darpan to come back. But by the time he comes, I have one more question that I think bothers pretty much everybody a lot of times, which is AI का क्या perspective है आपका? What do you think? Is it affecting your work? Has it started affecting your work? Have you been called to make any recordings? Not yet, but I know down the line it is a potential threat. It is extremely scary. But this is my personal opinion. मुझे ऐसा लगता है कि AI will never be able to replace the human touch or what an artist can bring to the table. I think we will figure out a way to coexist with it. Okay. I don't know how, but अभी तक मुझे कुछ ऐसा मेरे काम में affect नहीं हुआ है, और कोई ना कोई तरीका निकल जाएगा। That's what I hope. Right. And also technological advancements we can't really stop it. तो अभी वो क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब नहीं कर सकते हो। Correct. वो आ चुका है। I mean now what do we do with it? Right. We cannot be in denial कि ये नहीं आना चाहिए या नहीं, मतलब वो आएगा ही, मतलब it is correct. Most of the studios have already started working with it. Correct, absolutely. I think most of us हम लोग dubbing करते हैं तो उसमें I think it's not affected it to that degree, but corporate voice overs वगैरह करने वाले जो artists दोस्त हैं मेरे, वो we can understand कि उनका बहुत volume कम हो चुका है. So it is a real threat, but hopefully, I mean, with the help of our association of voice artists, हम कोशिश कर रहे हैं कि legally we can create, certain safeguards जिससे हम artists are not damaged, in terms of finances and all that. Okay, so let's sort of try and wrap this up with one line advice that you would want to give somebody who is in the position that you were maybe 6 years ago, 7 years ago when you started, जो बस इस कगार पर हैं कि इस फील्ड में आना है हमें। तो एक कौन सी वो सलाह होगी, एक कौन सी वो टिप होगी जो आप उन्हें देना चाहेंगे, to just kind of bring this entire session to submission? वो क्या चीज होगी जो आप you think just start, you would have loved to hear 6 years ago when you were starting off, that one advice from a senior that you would have loved to hear, that would have changed or saved you a little time or a struggle initially? I think
nothing in specific, but हाँ मेरे को लगता है वो करते जाओ बस. You just keep doing it. Correct. That's an advice in itself, right? You get better. Keep doing the work, right. Yes. And also I feel monetary wise भी अगर जो कोई artist सोचता है, while he's a newcomer, he or she is a newcomer, I feel के fortunately I feel के बहुत सारा corporate जो है उससे तो better you might start earning if you're on the right track, if you keep working hard towards your craft. I think you'll definitely start making more than a normal corporate job, for sure. So I think it's a beautiful field, and there should be more artists coming in. Wonderful. Absolutely. Wonderful. I think it's a golden era, and I'm just thinking, I would just say that if you want to start, just start, be persistent, keep getting in touch with studios. That is the only way, and do not get disheartened if you are rejected or if they ask you to give 10 takes initially, because that is just a part of it. Because बहुत बार होता है इतने takes देख के आपको लगता है नहीं हो पाएगा. Just be at it. If you really want to, then for some years, 2-3 years, give it your all. Right. Absolutely. That's great advice. I agree. Right. I think you should be persistent enough, और also patience के साथ आइए इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज आपको एकदम से नहीं मिलेगी. और of course आप भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, आप रेडी होके आ सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं. You know, there is struggle in every field, so be prepared for that, and बस पैशन के साथ काम करते रहिए. You will. So I think those are like yes, Ish, please. I wanted to add to what Rinki said के retakes तो आज भी होते ही हैं. There's no problem with that. तो वही तो डरने वाली बात ही नहीं है. कई दफा ब्लॉकबस्टर्स आ जाते हैं एक ही साथ ट सब एक ही लाइन में आ जा रहा है. It definitely becomes a challenge. तो ठीक है. Yeah, actually I want to add to that कि retake कभी भी होता है, but I remember initially जब मेरे साथ होता था ना, अगर मुझे दूसरी बार डायरेक्टर ने फीडबैक दे दिया है कि ये नहीं हो रहा है, my brain will switch off. My brain will switch off, and I will keep doing, and I kept doing the same thing. And they're saying, but because जैसे 2-3 बार आपको बोलते हैं ना सही नहीं कर रहे हैं, so I thought कि नहीं हो रहा है, and oh my god, your brain is like brain freeze हो जाता है. बिल्कुल. No. But today I know if you give me a feedback, Rinki, listen to the feedback and apply it. Yes. I used to stop listening. I used to be like, shit, एक ही बार में सही आंसर सही take करना है. Oh no. So even audition में भी होता था. Audition में अगर किसी ने आपको feedback दे दिया कि हुआ नहीं है, वो तो बात की बात है कि आपका नहीं हुआ, लेकिन feedback दे दिया कि अरे आप ना इस पे थोड़ा बस नहीं भाई, अब तो जाके अलग ही दिमाग शट डाउन हो जाता था. लेकिन वही एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट को वही बोलना है कि ये नहीं करना है, जो हमने किया है वो नहीं सोचना है. Like take a breath, take a step back, बस थोड़ा सा relax करो खुद को और एक बार फिर से कोशिश, you will get it. I don't even know if I should share this here, but I'll just take 2 minutes to share it also. I don't name the studio. I don't name the studio. So I had gone and they had cast me. They had already cast me. It's not even audition. They had cast me, and कुछ उन्होंने बस बोला कि आप टोन ऐसा रखिए, थोड़ा डल आ रहा है. So basic, you know. So I could have changed that. But 2-3 बार वो ऐसा हो गया. मैं ऐसे हुई कि I have given 10 takes and then I have said, I don't think I'm good for this part. Please call someone. I'm leaving. Because I got because I thought I had come out of that studio. It was such a big studio, and they had called me for the first time. And I was like, I have howled and howled after coming outside. Why did I do this? But after that incident, I was like, मेरा तो यहाँ से पत्ता कट गया. They will never call me. Cast किया था और ये चली गई 10 लाइन बोलती कि आप किसी और को किया. Last and I come because you cannot show them, na. So you are like, I don't think I should this part for someone else. So I stopped that. ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना. But I think the important yes. But yeah, after that day I've never been inhibited or after that I'm like, if they've given me a feedback, listen to it, do the take, and then So I think the closure of this entire thing is, the couple of P's that we collected, which was persistence, performance, work on your performance, be passionate about it. So passion,
and just persevere, even if you get rejections or whatever, just keep at it. Darpan is here, so Darpan, what did you think? Were you able to hear one more P? Of course, one more P could be patient, and one more P could be pragmatic and practical. So I was very impressed. I was very impressed to find a very refreshing take on AI, because I used to feel like the odd one out all this while when I would see people around us कि हम मोर्चा निकालेंगे और हम वो करेंगे कि हम ये technology को हटाओ यहाँ से. It reminded me of that movie Naya Daur. You guys are too young to remember that there used to be a movie called Naya Daur. जब मजदूरी करते थे और नई मशीनें आई थी तो उन्होंने कहा मशीनें हमको चाहिए ही नहीं, मशीनें आएंगी तो हमारा क्या होगा. बट मशीनें आई और मशीनें हैं और उसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोक नहीं सकते. एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट वी विल हैव टू कोएग्जिस्ट, और इस तरह से लड़ने की बजाय हमें खुद को अपस्किल करना होगा. एंड वी हैव टू, सो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग दैट all of you have a very nice and a very progressive perspective. And I must say that while I started the session calling it the young and the restless, but having heard this entire conversation, I feel very assured that while all of you are young, but most of you do not come across as restless. And it seems that the future of the industry is in very safe voices, if I may say. So it's nice to see that, क्योंकि आप जहाँ पर हैं, we were there someday, हम कभी वहाँ थे, and I can say that at that age, we were not even, me or my contemporaries were not even a fraction of as mature or as understanding. Sorry, Ish, you were saying something. No, I was just validating to what you were saying. That I completely agree. Absolutely. So thank you guys. It was wonderful to have this session, and I'm sure everyone who is watching is going to feel that this was like a fresh, like a whiff of fresh air in terms of the thoughts. And amazing that for this age you guys have such a holistic understanding of really the balanced perspectives, and very balanced. And thank you, Sanket, for bringing out the best from them. And I'm looking forward to seeing all of you on the 8th of December at Rang Shahada for the grand finale. I hope all of you will make it and get your red carpet look ready, because you have to also walk the red carpet. The program starts at 2 p.m. and join us for the after party as well. And everyone who's watching, if you would like to be a part of the grand finale, you can get your passes on indiavoicefest.com. Get a chance to meet these star voices, take their autograph, take pictures with them. Like I've always said, हमारा अपना time आएगा, हमारा time आ गया है. The time for the voices has come in. And thank you again for sparing your precious evening with us. And thank you so much for having us. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sanket. Bye.